are beginning with today's lecture. We are doing Indian polity current affairs. So tell me this answer to this question. The judicial mechanisms, the judicial statement one, the judicial mechanism is mentioned, or the judicial mechanism of arbitration conciliation and mediation. Arbitration, conciliation and mediation are mentioned in the constitution. Okay, first statement, the judicial mechanism of arbitration, conciliation and mediation are mentioned in the constitution. 2, Supreme Court has the power to appoint has the power to appoint arbitrators. ठीक है, दो स्टेटमेंट. The judicial mechanism of arbitration, conciliation and mediation are mentioned in the constitution. Second, Supreme Court has the power to appoint arbitrators. Option A, one only. Option B, two only. Option C, both. Option D, none. One only, two only, both. Option 1, 2, 3, 4. बताइए. One only, two only, both none. One only, two only, both none. One only, two only, both none. Both. Very good. बेटा कौन से आर्टिकल में मेंशन है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन या मीडिएशन? कौन से आर्टिकल में मेंशन है? डी कह रहे नन, मनीष कह रहे टू ओनली. ठीक है, इसका मतलब हमने क्या सीखा कि हम आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन, मीडिएशन के बारे में कुछ नहीं पता है ना. ये सीखा हमने. हमें आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना. आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन के बारे में, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन के बारे में नहीं पता है ना. वेरी गुड. तो इसका मतलब कुछ न्यूज में आया था, वो हमें समझना है. ठीक है, आपके नोट्स में भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस इशू इज ऑल अबाउट. विजिबल है स्क्रीन पर? वेरी गुड. सो रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज ब्रॉट चेंजेस इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट. ठीक है, 2019 में एक एक्ट आया था दैट provided for the establishment of Arbitration Council of India. ठीक है, provided for the establishment of Arbitration Council of India. यानी कि कौन सी बॉडी हो गई? कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी? स्टैट्यूटरी. वेरी गुड. तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई. पहला क्वेश्चन यहाँ हमने कर लेंगे मैनेज. Arbitration Council of India, it is a statutory body. Which act के through? Arbitration and Conciliation Amendment Act 2019. ठीक है, Arbitration and Conciliation Amendment Act 2019. अब members कौन होंगे इस काउंसिल के? तो person who is a judge of Supreme Court, a person who is a judge of High Court, or Chief Justice of a High Court, an eminent person with expert knowledge in the conduct of arbitration. ठीक है, ये आपको याद नहीं रहेगा, याद करना नहीं. इतना डिटेल में नहीं आता है, जनरली नहीं आता है. अगर पढ़ के जा रहे हैं, दिख जाता है पेपर में, सॉल्व कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. अदरवाइज इतना डिटेल में नहीं आता है. ओके, वेरी गुड.
अब इसमें अदर मेंबर्स कौन होंगे? दे विल बी एमिनेंट आर्बिट्रेशन प्रैक्टिशनर, यानी कि जो प्रैक्टिस करते हैं आर्बिट्रेशन, अकाडमिशियन विद एक्सपीरियंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ये होगा आपका आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में हैव पावर टू डेजिग्नेट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस with to which the parties can approach for appointment of arbitrators. ठीक है, तो there will be certain arbitration institutions from where you can get a arbitrator. Who has the power? Supreme Court and High Court. International commercial arbitration के लिए that arbitration will be done by the Supreme Court. ठीक है, for domestic arbitration that will be done by High Court. For international, it will be done by Supreme Court, and for domestic, it will be done by High Court. ठीक है, इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट, डोमेस्टिक हाई कोर्ट। समझ में आ रहा है? अब जो भी प्रोसीडिंग होंगी, ठीक है, जो भी प्रोसीडिंग होंगी उसका सारा रिटन क्लेम हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 6 months. The proceedings, the defense to the claim in an arbitration, that should be written and it should be completed within 6 months of the appointment of arbitrators, not from the day of the dispute, but 6 months from the appointment of arbitrators. इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा, 6 months from the appointment of arbitrators. ठीक है, सारी डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी। ठीक है, proceeding will be completed in 6 months, but all the details will be kept confidential. Disclosure तभी होगा when it will be considered as necessary for implementing the arbitration award. The details will be kept confidential. ठीक है, ये नहीं आएगा कि the arbitration proceedings will be made public, ऐसा स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, तो पब्लिक नहीं होंगी, those details will be kept as confidential. ठीक है, those details will be kept as confidential. समझ में आ रहा है यहाँ तक? ये तो ओरिजिनल एक्ट है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ है? हुआ है, गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड ऑटोमेटिक स्टन अवार्ड्स। फॉर एग्जांपल, कोई एक आर्बिट्रेशन फ्रॉड के थ्रू हुआ है, मान लीजिए आपका और मेरा एक डिस्प्यूट था, कमर्शियल डिस्प्यूट, हमने आर्बिट्रेशन अपॉइंट किया और उसने पार्टी ए एंड बी में से बी की तरफ फेवर कर दिया। ठीक है, बी की तरफ फेवर कर दिया, और जो बी की तरफ फेवर है, ठीक है, वो जो बी की तरफ फेवर है, वो बी का फेवर फ्रॉड के थ्रू आया था, वो जो फेवर था वो फ्रॉड के थ्रू था, तो देयर विल बी ऑटोमेटिक स्टे ऑन सच एन अवार्ड। ओके, वेरी गुड। क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेटर्स है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अर्लियर इट वाज इन द एक्ट इटसेल्फ, नाउ इट विल बी डिसाइडेड बाय द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, वेरी गुड। अब ये तो चेंजेस है, ये न्यूज है। अब क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज आर्बिट्रेशन? आप सब इतने से हाँ हाँ कह रहे हैं, आर्बिट्रेशन होता क्या है? व्हाट इज आर्बिट्रेशन? हम लोग इतने से तो बोल रहे हैं ना, हाँ ये अच्छा, ये चेंज किया, ओहो ये नया चेंज आया, अच्छा, लेकिन होता क्या आर्बिट्रेशन? बताइए। कोई नहीं बताएगा? मान लीजिए हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, फॉर एग्जांपल आप एक बड़ी फर्म है ए और एक दूसरी बड़ी फर्म है बी। ठीक है, ए एंड बी ने बोला कि दे विल प्रोवाइड देम प्रोडक्ट, ठीक है, 100 या 1000 क्वांटिटी में 1000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट्स दे विल प्रोवाइड, है ना, एंड ईच प्रोडक्ट विल कॉस्ट फॉर ₹10। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट को, अब इन्होंने 1000 यूनिट तो प्रोवाइड करी, 1000 यूनिट तो प्रोवाइड करी, लेकिन उसमें 998 टाइप की थी एंड 10 वर डिफरेंट। ठीक है, अब डिस्प्यूट हो गया, क्योंकि पेमेंट तो जो है बाद में ही जाती है, आफ्टर द सप्लाई ऑफ गुड्स। डिस्प्यूट हो गया, अब क्या करेंगे? दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है तो क्या करेंगे? कोर्ट जाएंगे,
है ना? नहीं, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है दैट वी विल सॉल्व ऑल डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन, we will solve all disputes through arbitration, तो हम इसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करें, ठीक है? यानी कि आर्बिट्रेशन एक तरीके का डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है आउट ऑफ द कोर्ट, बट इट इज लीगल, ठीक है? लीगल है, ऐसा नहीं है कि आप विदाउट लॉ के बाहर काम कर रहे हैं. इट इज लीगल, बट इट हैज टू बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट. दैट इज आर्बिट्रेशन. इट इज बाइंडिंग, ठीक है? अगर आर्बिट्रेटर ने कोई जजमेंट दिया है दैट विल बी बाइंडिंग. आप ये नहीं बोलेगा अब तुम कोर्ट जा रहे हैं, नहीं, इट इज बाइंडिंग. समझ में आया? मान लीजिए आपने कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? अब आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आपके पास होंगे ऑप्शन कोर्ट जाने के, या फिर आपके पास ऑप्शन होंगे कि हम ही आर्बिट्रेटर जैसा ही एक मैकेनिज्म चूज कर लें, है ना? अगर आप आपस में एक दूसरे के थ्रू आर्बिट्रेशन जैसा मैकेनिज्म चूज करते हैं उसको बोलते हैं कंसीलिएशन, which is not specified in the contract but you are choosing it to resolve your dispute out of the court, उसको बोलेंगे कंसीलिएशन, ठीक है? अब ये जो कंसीलिएशन है, दिस कंसीलिएशन, अब आपने कोर्ट में तो जाए नहीं, आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है दैट ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी कोर्ट की, so that dispute will be resolved, that dispute will be resolved through conciliation. And अब कंसीलिएशन जरूरी नहीं है ना बाइंडिंग हो, तो इट इज नॉट बाइंडिंग. यानी कि द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन, पहला, दे आर नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट. दूसरा, इट इज नॉट बाइंडिंग. वन इज बाइंडिंग, अदर इज नॉट बाइंडिंग. समझ में आ गया? वन इज बाइंडिंग एंड अदर इज नॉट बाइंडिंग. समझ में आ गया? वेरी गुड. अब मान लीजिए आप कोई थर्ड पर्सन अपॉइंट करते हैं कि वो जो बोलेंगे वो बात मानेंगे. थर्ड पर्सन अपॉइंट करते हैं, जो वो बोलेंगे वो बात मानेंगे. दैट इज मीडिएशन. दैट इज मीडिएशन. समझ में आया? दैट इज मीडिएशन. सर आर्बिट्रेशन और मीडिएशन में एक बार डिफरेंस बता दीजिए. देखिए, आर्बिट्रेशन में तो एक इंस्टीट्यूशन होता है आर्बिट्रेटर का, दे आर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स. मीडिएशन कैन बी एनी न्यूट्रल पर्सन, ठीक है? मीडिएशन कैन बी एनी न्यूट्रल पर्सन. आर्बिट्रेशन, दे आर प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स, जिनका काम ही ये है, ठीक है? मतलब दीज आर द पीपल हु आर वेल वर्स्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट लॉ. यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? वेरी गुड. अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं. सोशल मीडिया कितने लोग यूज करते हैं? सब लोग ही करते हैं लगभग, किसी भी एक तरीके का. नई गाइडलाइंस आई हैं, है ना? बहुत न्यूज में थी. ये गाइडलाइंस किसके लिए है? इंटरमीडिएट के लिए, है ना? है ना? यस, नो? These guidelines are for intermediaries. These guidelines are for intermediaries. समझ में आया आपको? वेरी गुड. इंटरमीडिएरीज क्या होता है? बाकी क्योंकि सब तो गाइडलाइंस समझ ले, लेकिन नहीं समझ में इंटरमीडिएरीज क्या है तो इमेजिन नहीं कर पाएंगे क्या करना है ना? यस, नो? वेरी गुड. हम लोग क्लास का लिंक शेयर करते हैं ना? कहाँ पे शेयर करते हैं हम लोग? क्लास का जब लिंक शेयर करते हैं कहाँ शेयर करते हैं? व्हाट्सएप पे, है ना? वेरी गुड. क्लास किसको करनी है? क्लास किसको करनी है? क्लास करनी है आप लोगों को. क्या लेनी किसके है? हमको. लिंक का शेयर हो रहा है व्हाट्सएप पे. व्हाट्सएप का क्या काम है? व्हाट्सएप का काम क्या हुआ? इसका मतलब सिर्फ बीच में एज अ मीडियम.
तो व्हाट्सएप इज अ इंटरमीडियरी, व्हाट्सएप इज अ इंटरमीडियरी, ठीक है। व्हाट्सएप का और कोई काम नहीं, व्हाट्सएप का काम है जस्ट टू एक्ट एज अ इंटरमीडियरी। तो ये होते हैं आपके इंटरनेट इंटरमीडियरी, समझ में आया। तो इनके लिए गाइडलाइंस है, ठीक है, इनके लिए गाइडलाइंस है। अब न्यूज समझे किसके बेसिस पे हम लोग इसको समझ रहे हैं। वेरी गुड। ये जो गाइडलाइंस है कौन से एक्ट के अंदर आई होंगी? आईटी एक्ट। वेरी गुड, आईटी एक्ट। कौन सा आईटी एक्ट का सेक्शन था दैट वाज डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल? 66A। 66A, वेरी गुड। आईटी एक्ट के कौन से सेक्शन के अंडर सर्वेलेंस इज अलाउड? 69। वेरी गुड, 60, ठीक है। तो यानी कि आईटी एक्ट से कितनी न्यूज आ रही है, तो आईटी एक्ट तो इस साल आना ही आना है, इस साल आईटी एक्ट तो आना ही आना है। वेरी गुड। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज देयर इन आईटी एक्ट। स्क्रीन इज विजिबल, मतलब नोट्स विजिबल हैं। अब क्या है, दैट द गवर्नमेंट हैज रिलीज गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट। गवर्नमेंट हैज रिलीज गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है। गवर्नमेंट हैज रिलीज गाइडलाइंस अंडर 87 ऑफ सेक्शन 87 ऑफ आईटी एक्ट, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब क्यों है, क्या है, किस लिए है, ये मेंस के लिए है, प्री के लिए इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन इसमें किस किस के इंक्लूड है? पहला, इट कंटेन्स द डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। डिजिटल मीडिया क्या हुआ? जो भी आपके ऑनलाइन न्यूज प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, द वायर है, क्विंट है, न्यूज लॉन्ड्री है, न्यूज नेशन है, ये सारे नहीं, न्यूज नेशन तो मीडिया वैसा है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये सब दीज आर डिजिटल मीडिया, ठीक है। तो उनके एथिक्स कोड आए हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोड्स आए हैं, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए कोड्स आए हैं, एंड गाइडलाइंस फॉर द सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स, ठीक है। समझ में आया? विच मिनिस्ट्री विल बी डीलिंग विद दिस? Which ministry will be dealing with it? Ministry of Information and Broadcasting for Media, and Ministry of Electronics and IT for the social media intermediaries. They are all not under same ministry. कैच समझ रहे कैसे होता? अभी आपने अगर रीडिंग करी तो ये वाला मिस कर दिया होगा आप लोगों ने। आपने मिनिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स देख के थोड़ा अगली मिनिस्ट्री भी सेम हो, है ना? क्यों? क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे यहीं से बन जाते हैं ना, यूपीएससी क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर्स के हिसाब से अब ये रूल्स लाने की जरूरत पड़ेगी। व्हाट्सएप के देयर आर 53 करोड़ यूजर्स ऑन व्हाट्सएप, यूट्यूब के 44 करोड़ यूजर्स आर देयर, फेसबुक को 41 करोड़, इंस्टाग्राम 21 एंड ट्विटर 1.75 करोड़। यानी कि the users are in crores. It means these intermediaries, they have a capacity to influence almost half the nation. WhatsApp is having power to influence half the nation because of the number of users, है ना? यानी के these things need to be put under a little, not we are not using this word censorship, but a little governance. We are not saying that there will be censorship on them, but there has to be certain governance on them, है ना? जिससे क्या हो कि आप सोशल मीडिया पे अपने व्यूज क्लियरली शेयर कर पाए, है ना? अब ये सब बेनिफिट दिए हुए हैं, ये मेंस में जरूरत है, प्रीमेंस की जरूरत नहीं है। रैशनल क्यों, नई गाइडलाइंस क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया ऐसा आप करिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बोला कि नए रूल बनाइए। राज्यसभा में देयर वाज अ कॉलिंग अटेंशन मोशन, इन राज्यसभा देयर वाज अ एड हॉक कमिटी। मेन जो सबसे बड़े कंसर्न्स हैं इन रूल्स के, वन इज पोर्नोग्राफी, particularly child pornography,
पर्टिकुलरली चाइल्ड पोर्नोग्राफी। दूसरा फेक न्यूज। ये दो चीजें, these two are the biggest threats that are existing because of the intermediaries or because of the social media. Child pornography, at the same time cyber bullying, at the same time cyber bullying और एनी टाइप ऑफ साइबर क्राइम्स, है ना, ये सब चीजें होती है। तो इसीलिए लॉ लाने की जरूरत पड़ी। अब क्या नए रूल्स हैं, क्या नई गाइडलाइंस है, तो लेट अस अंडरस्टैंड फॉर द सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज फर्स्ट। सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज कौन सी उसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री के अंदर? So electronics and IT, very good. So it is under electronics and IT, very good. अब इसमें क्या क्या है कि पहला, दो इंटरमीडिएरीज है, दे शुड बी फॉलोइंग ड्यू डिलिजेंस, ठीक है, फॉलोइंग ड्यू डिलिजेंस। अगर वो ड्यू डिलिजेंस नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उनको फिर सेफ हार्बर नहीं मिलेगा, द गवर्नमेंट माइट पुट देम अंडर सेंसरशिप। सेफ हार्बर ये होगा मतलब दे विल नॉट बी पुट अंडर एनी काइंड ऑफ सेंसरशिप। अब इन्हें क्या क्या करना है? अब मान लीजिए यू हैव सर्टेन इशू विद रिस्पेक्ट टू अ पोस्ट ऑन फेसबुक। अब आप क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे, लेकिन रिपोर्ट करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा ना, वो दोबारा पोस्ट कर दे किसी और अकाउंट से। आपको अगर किसी चीज से दिक्कत है और मान लीजिए यू आर द पर्सन, मान लीजिए आप ही का फेक अकाउंट बन गया, ठीक है, और आपके दोस्तों से पैसे मांग रहे हैं, ऐसे बहुत होता है ना, ऐसे बहुत होता है ना। एक सबसे मस्त तो एक आया था, किसी ने महेंद्र सिंह धोनी का अकाउंट बनाया और जो कह रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे 500 रुपए भेज दो, और अपनी फोटो भी खींच के भेज रहे कि ये देखो मेरी सेल्फी, मैं घर पहुंच के दे दूं। अब इस कंडीशन में वेयर विल यू कंप्लेन? साइबर सेल। लेकिन वो तो बेटा इंडियन लॉ के हिसाब से, साइबर सेल को क्यों करना है? फेसबुक पे काम हो रहा है, फेसबुक को फिर फेसबुक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अब मान लीजिए हम क्लास में हैं, ठीक है, क्लास में मान लीजिए आपको कोई एक एक्स, फिर एक्स ए, ठीक है, ए कैंडिडेट, ठीक है, आपको परेशान कर रहा है ना, आपको परेशान। अब आप हमें बताओगे कि पहले जाओगे कंप्लेंट करने जाओ? सबसे पहले तो हमें ही बताओगे ना। अगर हमने एक्शन ले लिया तो आपका ग्रीवेंस रिजॉल्व हो गया। तो बस यही काम इंटरमीडिएरीज पे भी होना है, that there will be a grievance redressal mechanism. There will be a grievance redressal mechanism. ठीक है, इसमें क्या होगा? That the intermediaries will provide mechanism so that the victims or the accused they can complain to the authority. अब इसमें कौन होगा? There will be a grievance officer, ठीक है, there will be a grievance officer. The grievance officer shall provide acknowledgement of the complaint within 24 hours and resolve it within 15 days. ठीक है, so every intermediary shall provide the name and contact details of any such officer. समझ में आ गया? grievance redressal mechanism समझ में आया? क्यों है? रैशनल भी समझ गए, क्योंकि इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, इस टॉपिक के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां तक क्लियर है हम लोग? वेरी गुड। Now, if someone is using the morphed images of a person, someone is using a morphed images of person, especially of women, अब उस सेंस में इंटरमीडिएट की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर आपका प्लेटफॉर्म है, आपके प्लेटफॉर्म पे अगर ये चीजें गलत हो रही है तो आप ही की जिम्मेदारी होनी चाहिए, है ना। तो उसमें क्या है कि एक उनका responsibility है of ensuring online safety. तो intermediaries shall remove or disable access within 24 hours or receipt of complaints.
कंप्लेंट के बाद 24 आवर्स में सच कंटेंट शैल बी रिमूव एंड कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय इंडिविजुअल और एनी अदर पर्सन बाय ऑन देयर बिहाफ. ऐसा नहीं है कि ओनली दैट इंडिविजुअल कंप्लेन. ठीक है, वेरी गुड. अब सोशल मीडिया इंटरमीडिएट दो में डिवाइड करेंगे. पहला है सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट एंड दूसरा है सोशल मीडिया इंटरमीडिएट. यानी कि द नंबर ऑफ यूजर्स ऑन व्हाट्सएप आर वेरी high as compared to the number of users on Twitter. On WhatsApp there are only, or sorry, on WhatsApp there are 53 crore users. Significant influence कर सकता है, and then there are 1.75 crore Twitter users. और ऐसे बहुत अलग प्लेटफॉर्म होंगे जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे 10,000 यूजर्स, 15,000, 100 यूजर्स ऐसे भी होंगे, है ना. वेरी गुड. यूजर्स से ध्यान है, अगर आपने अभी तक एडुब्रिज को सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा. टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे अच्छा मौका है. ठीक है, तो जो छोटे ग्रुप है उनको क्या बोलेंगे, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट. जो बड़े हैं उनको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट. ओके, सिग्निफिकेंट के लिए अलग गाइडलाइंस है, सोशल मीडिया के लिए अलग गाइडलाइंस. सिग्निफिकेंट के लिए क्या है, दैट दे हैव टू अपॉइंट अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर. They have to appoint a chief compliance officer who shall be responsible for ensuring compliance with the act and rules, and that person should be a resident of India. ठीक है, भला ऐसा नहीं कि यूएस में ही किसी को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, ऐसा नहीं है. द कंप्लायंस ऑफिसर शैल बी, जैसे फेसबुक है, मान लीजिए फेसबुक का अगर कंप्लायंस ऑफिसर यूएसए में है, तो द पर्सन इज नॉट एक्सेसिबल फॉर यू, so that person shall be a resident of India. ठीक है. दूसरा, there shall be a nodal contact person for 24/7 coordination with the law enforcement agency. आपने साइबर सेल में कंप्लेंट करी, अब साइबर सेल वाले वेट कर रहे हैं, अरे बात तो करें, इंटरमीडिएट से बात तो हो. अब वो ये तो नहीं सुबह वो कहेंगे सुबह फोन करना. There has to be 24/7 क्योंकि there are the social media intermediaries, they are cross border also, timing may differ, है ना. Very good. There also has to be a resident grievance officer जिसका काम क्या होगा, ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म वाले काम को परफॉर्म करना. ठीक है, समझ में आ रहा है. एंड दैट पर्सन शैल आल्सो बी अ रेजिडेंट ऑफ That person shall also be a resident of India. ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत. ये सब काम करने के बाद दे नीड टू पब्लिश अ मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट. मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट, है ना. They have to have a monthly compliance report. उसमें क्या होगा कि कौन कौन से आपके पास रिपोर्ट्स आई, कौन कौन सी रिपोर्ट्स पे आपने एक्शन लिए, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करनी है. ठीक है, वेरी गुड. सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया आइडेंटिफाई, दे विल आल्सो आइडेंटिफाई द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ इंफॉर्मेशन. अब व्हाट्सएप पे जैसा आता है ना, फॉरवर्डेड या नॉर्मल वाला होता है, तो क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फर्स्ट originator. This will only be for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution or punishment of an offense related to sovereignty and integrity of India, security of the state, friendly relations with foreign states, or public order, or of incitement to an offense relating to above relation to rape, sexually explicit material, child abuse, material punishment or imprisonment for a term not less than 5 years. An intermediary shall not be required to disclose the content of any message or any other information to the first originator. जिसने भेजा उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं. ठीक है, and they should have the significant social media intermediaries, they should have a physical contact address. They should have a physical contact address in India, and that should be available on their website or mobile app, whatever they are providing. ठीक है, समझ में आ गया ये चीज है. वेरी गुड. ये सब किसके लिए है, these are for significant social media intermediary.
ठीक है, उसमें और क्या है, वॉलेंट्री यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म होगा। कैसे होता है ना कि अपना वेरिफिकेशन दे, काफी सारे एप्स अगर आप यूज करेंगे, दे डिमांड योर आधार कार्ड, दैट इज वॉलेंटरी, सो दे कैन identify that you are the actual user and someone is not using a fake account. The users must be given an opportunity to hurt. मान लीजिए आपने कुछ शेयर किया और उन्होंने बोला ये तो ठीक नहीं, हम इसको हटा देते हैं, तो आपने तो एक्चुअली जेन्युइन चीज पोस्ट करी और उन्होंने हटाया, तो दैट मींस यू आर नॉट गिवन अ ड्यू अपॉर्चुनिटी. So the users will be given opportunity to be heard, and if there is a complaint, that complaint on receiving by the actual knowledge in the form of order or code must be notified and published if any such thing is violating any law in India. मतलब कोई ऐसी कंप्लेंट, ठीक है, एनी कंप्लेंट अगर कोई लॉ वायलेट करते हैं तो द इंटरमीडियरी शैल एक्नॉलेज कि हाँ ऐसी कोई हमारे पास कंप्लेंट आई है. समझे? वेरी गुड. द रूल्स जिस दिन से एक पब्लिश हुआ है तब से एक्सेप्टेबल हो गए. बस ये जो लास्ट के 3 है दैट विल बी फॉर द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स. ठीक है, एंड ये कब आएंगे? दे विल बी फंक्शनल इन 3 months. ठीक है, दे विल बी फंक्शनल इन 3 months, इमीडिएटली नहीं. यहां तक समझ में आ गया? यस, नो? चलें आगे, दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार अभी सुन लीजिए. अब डिजिटल मीडिया, या पहले इंटरमीडिएट के रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है, इंटरमीडिएट के रिवाइज कर लेते हैं. क्या क्या सैलिएंट फीचर है? ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा. ठीक है, फॉर द कंप्लेंट ऑफ द यूजर्स, ग्रीवेंस ऑफिसर विल बी अपॉइंटेड. द डिग्निटी ऑफ द यूजर्स हैज टू बी प्रोटेक्टेड. 2 कैटेगरी ऑफ सोशल मीडिया डिवाइडेड, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी एंड सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. अब एडिशनल रूल जो ड्यू डिलिजेंस के हैं वो सिर्फ सिग्निफिकेंट के लिए, बाकी ग्रीवेंस ऑफिसर एंड इंश्योरिंग ये सिर्फ ये सबके लिए है. ये एडिशनल जो है दीज आर ओनली फॉर द सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. क्या है? दे विल बी अपॉइंटिंग अ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, will be appointing a chief compliance officer. Second, they will appoint a nodal person. They will have a resident officer. They will provide a monthly report. They will identify the original originator of message. They will have a physical contact address in India. They will have a voluntary user verification mechanism. They will provide opportunity to be heard, and these rules will be functional as soon as they are in the gazette except the last 3. ठीक है, वेरी गुड. OTT प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या रूल्स हैं ये देख लेते हैं. डिजिटल मीडिया एंड OTT प्लेटफॉर्म. तो कोड ऑफ एथिक्स एक स्टैब्लिश किया है. ठीक है, इसमें गाइडलाइंस है कि कैसे इस तरीके से दे विल बी प्रोवाइडिंग द न्यूज ऑन देयर प्लेटफॉर्म. तो मतलब खुद से ही दे विल एस्टैब्लिश देयर एथिक्स. ऐसा नहीं है कि विदाउट आप कोई भी एथिक्स काम कर रहे हैं. सो द OTT प्लेटफॉर्म दे विल प्रोवाइड एथिक्स. ठीक है, द कोड ऑफ एथिक्स. ठीक है, आगे चले. वेरी गुड. अब OTT प्लेटफॉर्म जो है सेल्फ क्लासिफिकेशन करेंगे कंटेंट. आपने कोई भी कंटेंट देखा वहां कभी होता है यूनिवर्सल कि सब लोग देख सकते हैं, 18+ AUA ये सब देखा होगा, तो ये सेल्फ क्लासिफिकेशन है. एनी मटेरियल दैट इज सर्टिफाइड एज universal or adult 13+ or higher, that will need parental, or that will be providing as parental locks. It means that content can be locked by the parents. And for any content that is classified as A,
ठीक है, फॉर दैट दे विल बी रिक्वायरिंग द यूजर वेरिफिकेशन दैट द यूजर इज अबव द एज ऑफ 18। समझ गया? बिल्कुल क्लियर है। वेरी गुड। द पब्लिशर ऑफ दिस कंटेंट shall display it at the very beginning of the platform। मतलब आप कुछ भी ओपन करते हो उसके सब खुलते ही सबसे पहले आपको ये दिखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? ये आपने नोटिस भी किया, ओटीटी पे तो चीज नोटिस करी होगी, तो ये नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है, अब द पब्लिशर्स ऑफ द डिजिटल मीडिया शैल ऑब्जर्व norms of journalistic conduct of the Press Council of India and program code under the Cable Television Networks Regulation Act that will provide a level playing field for the online media, offline media, that is the electronic or print media। ठीक है, इसमें 3 लेवल ऑफ ग्रीवेंस मैकेनिज्म होगा। सब कुछ सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, सब कुछ सेल्फ है, गवर्नमेंट के अंदर थ्रू कुछ नहीं है। एवरीथिंग विल बी अंडर द सेल्फ रेगुलेशन। फर्स्ट, self regulation by the publishers, self regulation by the publishers। दूसरा, self regulation by the regulating bodies, publishers खुद करेंगे, self regulation by the self regulating bodies of publishers, and third will be having an oversight mechanism कि वो कैसे काम कर रहे हैं उसको देखेंगे। अब सेल्फ रेगुलेशन पब्लिशर के थ्रू कैसे होगा? that there will be a grievance redressal officer in India who will make sure अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पब्लिशर को कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी क्या होगी? that there will be a body of the publishers। ठीक है, that will be a body of the publisher। this self regulatory body will be headed by retired judge of Supreme Court, retired judge of Supreme Court, High Court, or any independent eminent person who have not more than 6 members। ठीक है, 6 से ज्यादा members नहीं हो सकते हैं। headed by retired judge of Supreme Court or High Court, ठीक है, or any independent eminent person। this body has to be registered with the Ministry of Information and Broadcasting, has to be registered with the Ministry of Information and Broadcasting। ठीक है, this body will oversee the adherence by the publisher to the code of ethics and any grievance shall be reduced within 15 days। ठीक है, shall be reduced within 15 days। oversight mechanism क्या होगा? it will be through the mechanism established by the Ministry of Information and Broadcasting। okay, समझ में आ गया? ये सब चेंजेस आए, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई भी दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? यस नो? वेरी गुड। अब रिसेंटली एक जो है रेगुलेशन आया, रेगुलेशन ऑफ बिग टेक्स, यानी कि फेसबुक, गूगल इन दी डिजिटल प्लेटफॉर्म और दी साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में मोनोपोली बहुत ज्यादा है, मोनोपोली बहुत ज्यादा है। एनीवन हु वांट्स टू run their business, they are generally having their presence on Google in the form of the Google reviews, or they are having their presence on Facebook। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो नए रूल्स बनाए हैं उन्होंने क्या किया है? that these big giants, they should not be following the trust methods। it means they should not be following the many monopolistic method to provide unfair advantage to themselves and unfair disadvantage to their members। ठीक है, unfair disadvantage to themselves and unfair disadvantage to their members। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब ये कौन से मैकेनिज्म से है? दिस रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज अंडर आईटी एक्ट 2000। ठीक है, आईटी एक्ट 2000। समझ में आया? Very good। The center and the state government, now provided power to issue directions to intercept, monitor, decrypt any information generated, transmitted
received or stored in any computer resource, यानी कि वो डायरेक्शंस इशू कर सकते हैं फॉर द इंटरसेप्शन ऑफ एनी सच कंप्यूटर रिसोर्स, इसलिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था इसका। द गवर्नमेंट कैन सर्च एनी रिसोर्स, ठीक है, वेरी गुड। अब who will have the guide surveillance over these rules? So that will be the Competition Commission of India. The Competition Commission of India will promote, or this body established to promote an environment of competition, and it will provide that no firm is having dominance and they are using their power in order to abuse the business, ठीक है। इसके लिए अब हमें क्वेश्चन क्या आ सकता है कि व्हाट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? सो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पांसिबल फॉर एनफोर्सिंग कंपटीशन एक्ट, ठीक है। तो इट इज क्रिएटेड अंडर द कंपटीशन एक्ट, इट वाज established in 2009 and it is a quasi judicial body, याद रखिएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है। What does it aims to provide? It aims to provide a competitive environment through proactive engagement with all the stakeholders and professionalism and transparency. ये तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या करना है। इसमें क्या है? It consists of 1 chairperson and 6 full-time members who shall be appointed by the central government. The members of Competition Commission of India are appointed by the central government. इसमें जजेस नहीं है, हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन as per the act यहाँ पर जजेस नहीं है, they are appointed by the central government, ठीक है, समझ में आया? अब इक्वलाइजेशन लिवाई भी न्यूज में था, तो भी समझ लीजिए क्या होता है। अब मान लीजिए गूगल है, उन्होंने एडवर्टाइज किया, उनको टैक्स कहां देना होगा? एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाया ना उन्होंने, अपने गूगल पे अपने आप को एडवर्टाइज किया, वहां पे अपने गूगल को पैसा दिया, उस पैसे में टैक्स कहां लगेगा? ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इक्विलेशन लेवाई, कि इंडिया में 6% टैक्स लगेगा उन पेमेंट्स के ऊपर, इंडिया में 6% टैक्स लगेगा उन पेमेंट्स के ऊपर। तो इक्वलाइजेशन लेवाई क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इट इज द टैक्स ऑन पेमेंट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, पेमेंट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम एन इंडियन रेजिडेंट, ठीक है। आपने गूगल को पैसा दिया, सबसे बड़े एग्जांपल वही, आपने गूगल को पैसा दिया, ठीक है, गूगल नॉन रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में आपने काम करवाया, तो फॉर दैट ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग एंड फॉर प्रोवाइडिंग दैट स्पेस टू यू, दे आर गेनिंग मनी, उसके लिए 6% इक्वलाइजेशन लेवाई दे हैव टू प्रोवाइड, ठीक है। इट इज फॉर बिजनेस टू बिजनेस ट्रांसैक्शंस, ठीक है, इट इज फॉर बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर के लिए टैक्स नहीं है। एज अ कंज्यूमर अगर आप कुछ खरीदते हैं तो आपको उस पर 6% टैक्स नहीं देना, आप अपने आप को एडवर्टाइज कर रहे हैं तो ही आपको टैक्स देना है 6%, ठीक है। ये जो स्कोप है या फिर ये जो इक्वलेशन लेवाई है, ये नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स पे भी लगा, यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट नहीं, फ्लिपकार्ट तो इंडियन है, अमेजॉन पे लग गया है, तो क्या है, उनको 2% लेवाई देना होगा, ठीक है। फॉर ई कॉमर्स इट इज बोथ बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है, इट इज बोथ फॉर बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर। समझ में आया? यस, नो, बहुत ज्यादा हैवी हो गया? हाँ, बहुत ज्यादा हैवी हो गया, चलो कोई नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई है? So 44. 86. 44, 86, 42. डिसाइड कर लो, चलो 3 ऑप्शन देते हैं, 42, 44, 86, बताओ कहाँ से आएगी?
42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, वेरी गुड। कौन से पार्ट में मेंशन है? 4A 4A, वेरी गुड। आर्टिकल 51A 51A, कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन? स्वर्ण सिंह कमेटी। वेरी गुड, स्वर्ण सिंह कमेटी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? 10+1 10+1। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी थी? 10। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 10 थी, वेरी गुड। और ऐड कब हुई फिर? बेटा यही तो कैच है, ओरिजिनल में कुछ नहीं था। ये 42nd से आई और ये 86 से आई, ओरिजिनल में कुछ नहीं था, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड। पंचायत पढ़ा है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कौन से पार्ट में है? Which part of the constitution? Which part of the constitution? नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। पार्ट तुम आपने मतलब वीकेंड में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल? So 243 से 243O 243 से 243O, वेरी गुड। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 73rd 73 थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, वेरी गुड। विलेज लेवल पे मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं? विलेज लेवल पे कैसे इलेक्ट होते हैं? So सारे लेवल्स पे डायरेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। चेयरपर्सन विलेज लेवल पे कैसे होते हैं? So स्टेट लेजिस्लेचर बताता है। वेरी गुड। एंड स्टेट लेवल, वो इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट, वेरी गुड। रिजर्वेशन कैसे कैसे प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू? रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कैसे कैसे प्रोवाइडेड है? 243D में प्रोवाइडेड है वुमेन को 33%, SC ST को पॉपुलेशन के हिसाब से। वेरी गुड। ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, ओबीसी में बोला है स्टेट लेजिस्लेचर विल डिटरमाइन, ठीक है, ये याद रखना है आपको। टर्म क्या होती है पंचायत की? 5 years 5 years। अगर उससे पहले डिसॉल्व हो जाती है तो? सो न्यू पंचायत इलेक्ट होगी, लेकिन वो सिर्फ रिमाइंडर टाइम के लिए होगी। वेरी गुड, रिमेनिंग समझ में आया? आता कोई दिक्कत? वेरी गुड। आगे चले। आगे चले। इंडिया में इंटरनेट शटडाउन इन द प्रीवियस ईयर या उससे पहले 2-3 साल से हम लोग काफी देख रहे हैं, ठीक है। अब इंटरनेट शटडाउन कौन से सेक्शंस के अंडर लगता है? तो ये समझिए, इट वाज अंडर
सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, आपको ये पता होना चाहिए। इट इज अंडर सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी। कौन कौन से एक्ट के अंदर लगता है, ठीक है। फर्स्ट इज अंडर आईपीसी एक्ट, सेकंड इज अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1973, and third is under the Telegraph Act 1885, Telegraph Act 1885, ठीक है। IT Act 2000, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 एंड टेलीग्राफ एक्ट 1885, ठीक है। 3 एक्ट के अंदर रखता है। यहाँ तक समझ गए? इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। कौन कौन से सेक्शन है ये सब आप नहीं जानेंगे, लेकिन कोई भी डायरेक्शन है दैट कैन नॉट बी इशूड एक्सेप्ट होम सेक्रेटरी ऑफ द कंट्री और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ठीक है। इंटरनेट शटडाउन के लिए दैट सस्पेंशन शैल बी कम, sorry, not for the internet, for the telecom services, it shall be from home secretary of the state or home secretary of the central government, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? वेरी गुड। अब विसिल ब्लोअर्स क्या होते हैं? Who are whistleblowers? Who are whistleblowers? So जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए यूज किया जाता है। अगर कोई किसी के खिलाफ अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो उसके प्रोटेक्शन के लिए विसिल ब्लोअर एक्ट, ठीक है, वेरी गुड। सो विसिल ब्लोअर के बारे में आपने जाना है। अभी क्या वाइस प्रेसिडेंट ने बस बोला है कि विसिल ब्लोअर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड, ठीक है। इसलिए था, तो एक बार आप रीडिंग लगा लीजिएगा, चांसेस कम है, ठीक है, चांसेस कम है, लेकिन फिर भी यू कैन हैव अ रीडिंग ऑफ इट, ठीक है। वेरी गुड, ये हमने कर ही लिया था। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी हमने कर लिया था। स्टार कैंपेनर्स, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कमलनाथ को स्टार कैंपेनर से मना कर दिया था इन मध्य प्रदेश, ठीक है, इन मध्य प्रदेश। तो इसीलिए इट माइट कम इन न्यूज, ठीक है। स्टार कैंपेनर कौन होता है? दे आर नॉमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू कैंपेन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो पॉलिटिकल पार्टीज विल nominate. The list of star campaigners must be communicated to the CEO, Chief Electoral Officer, and इसे within a week from the election notification, मतलब इलेक्शन के नोटिफिकेशन में within a week ही आपको देना होता है। And this is provided under the Representation of People Act 1951, यानी के the recognition of the star campaigner is provided under the Representation of People Act, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन है। नाउ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कैन हैव 40 कैंपेनर्स एंड अनरिकॉग्नाइज्ड बट रजिस्टर्ड कैन हैव 20 स्टार कैंपेनर्स। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, अनरिकॉग्नाइज्ड ऐसा नहीं कि दे कैन नॉट हैव स्टार कैंपेनर्स, इट्स जस्ट दैट दे नीड टू पे और इंक्लूड देयर एक्सपेंडिचर इन द टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर। रिकॉग्नाइज्ड को ये फ्रीडम है कि दे कैन कीप द एक्सपेंडिचर ऑन द स्टार कैंपेन एज सेपरेट, ठीक है, एज सेपरेट। वेरी गुड। नाउ ये आपको ये तो बता ही दिया है, यही चीज बताइए, ठीक है। हाउएवर अगले भी यही चीज बताइए, ठीक है। इफ एनी कैंडिडेट और इलेक्शन एजेंट शेयर द स्टेज विद द स्टार कैंपेनर, देन एंटायर एक्सपेंडिचर ऑफ दैट रैली विल बी एडेड टू द कैंडिडेट एक्सपेंस। मान लीजिए मोदी जी, अभी यूपी में इलेक्शन है, मोदी जी अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ स्टेट शेयर करेंगे तो दैट विल बी एडेड इनटू द एक्सपेंडिचर ऑफ द कैंडिडेट, वो स्टार कैंपेन में नहीं काउंट होगा, ठीक है, दैट विल नॉट बी काउंटेड इन द स्टार कैंपेन। समझ में आ गया? अब मैक्सिमम कितने अलाउ है? 30 है, 15, ठीक है, इनको कम कर दिया गया और एट द सेम टाइम जो टाइम था वो 7 डेज से 10 डेज तक एक्सटेंड कर दिया गया बिकॉज ऑफ द कोविड। समझ गए? यही न्यूज है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? इलेक्शन एक्सपेंडिचर है कि आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। कोविड में कम हुआ था, ठीक है, कोविड टाइम पे कम हुआ था, कितना है, ठीक है, कितना है कि 70 लाख
70 lakh for the Lok Sabha election and 28 lakh for the स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। लेकिन रिसेंटली मिनिस्ट्री ने क्या किया है कि जो एक्सपेंडिचर आप 10% बढ़ा सकते हैं, बिकॉज इट वाज बिलीव्ड दैट देयर इज सो मच ऑफ ब्लैक मार्केटिंग और सो मच ऑफ ब्लैक मनी इन्वेजन और इवेजन इन दैट कि 70 लाख में इलेक्शन कौन लड़ता है, तो उन्होंने 10% बढ़वा दिया कि आप इतने और स्पेंड कर सकते हैं। कोविड में जो था दैट वाज ओनली फॉर वन टाइम, वो जो रिडक्शन था दैट वाज ओनली वन टाइम रिडक्शन। तो आपको कोविड का ध्यान था ना, एक्सपेंडिचर कम हुआ था, वो ध्यान रखिए, वो जो एक्सपेंडिचर कम हुआ है वो एक्चुअली दैट वाज ओनली फॉर कोविड ड्यूरिंग टाइम इलेक्शंस, अब वो बढ़ चुका है। ठीक है, एक बात और समझिएगा, जो कैंडिडेट और जो तो इलेक्शन एक्सपेंस की लिमिट है ना, दैट लिमिट इज ऑन द कैंडिडेट नॉट ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज पर कैंडिडेट लिमिट। फॉर लोकसभा 70, फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव इट इज 28। इसमें 10% खुद से ऐड कर लेना, चीजें ऐड करके, है ना, समझ में आया। अगर कोई इनकरेक्ट अकाउंट देता है एक्सपेंडिचर का, दैट इलेक्शन विल बी कैंसिल्ड। इफ एनीवन प्रोवाइड्स इनकरेक्ट अकाउंट, दैट इलेक्शन विल बी कैंसिल्ड। ओके, नाउ सेक्शन 77 ऑफ आरपीए क्या करता है कि उनको सेपरेट अकाउंट रखना होता है, यानी कि ऑल दीज थिंग्स इट इज प्रोवाइडेड अंडर द आरपीए। समझ में आया? यस, नो? यस, नो? 6 शेड्यूल के बारे में जानते हैं? वेरी गुड। कौन 6 शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है? 6 शेड्यूल में, है ना? ठीक है, इट इंक्लूड्स अदर ट्राइबल एरियाज। देयर अदर ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, these other tribal areas are Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. अरुणाचल प्रदेश ने बोला है कि they also want themselves to be included in the 6 schedule areas, and for that they have passed the resolution. ठीक है, for that they have passed the resolution. इसीलिए न्यूज में है। तो आपको 6 शेड्यूल में पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स, कौन से आर्टिकल में मेंशन है। 244 प्रोवाइड द डेजिग्नेटेड शेड्यूल एरियाज for tribal areas and 275 provides for having the statutory grants to these states. ठीक है, grants and having the designated schedule areas. Okay, इसी के साथ साथ 6 शेड्यूल में एक और एरिया होता है जिसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट। इनर लाइन परमिट, इट इज अंडर द एक्ट दैट इज द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट। So inner line permit is statutory, जहां पे आपको कुछ इंडिया में कुछ एरियाज हैं, in order to visit those areas you need a permit, that is called as inner line permit. ठीक है, that is called as inner line permit. This is applicable in the states of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and now even Manipur. ठीक है, these are provided in Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram and even Manipur. ठीक है, these are different from inner line permit. There is another type of permit that is called a restricted area permit. Restricted area permit is for restricting the movement of foreigners. ठीक है, restricting the movement of foreigners. ये कहाँ है आपके region में? These are in the region like अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये मतलब अगर कोई फॉरेनर किसी एक एरिया को विजिट करना चाहते हैं, ठीक है, विजिट करना चाहते हैं, दे विल बी प्रोवाइडेड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट। ठीक है, इनर लाइन परमिट आर फॉर इंडियंस, रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट आर फॉर फॉरेनर्स। ठीक है, तो इसमें क्या है दैट फॉरेन नेशनल हर जगह नहीं विजिट कर सकते, दे हैव रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, बट विद दिस परमिट दे कैन विजिट दिस एरिया। इसमें भूटान को हम इंक्लूड नहीं करते हैं एज अ फॉरेनर। द सिटीजंस ऑफ भूटान आर नॉट इंक्लूडेड एज फॉरेनर्स। Citizens of Afghanistan, China, Pakistan and Pakistan origin are not allowed to enter such areas. ठीक है, भूटान को फॉरेनर नहीं इंक्लूड करते हैं, एंड सिटीजन ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन दे आर नॉट अलाउड टू एंटर सच एरियाज। ठीक है, समझ गए? इसमें कोई समझाने का है नहीं, ये तो बस फैक्ट्स हैं। वेरी गुड। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है?
डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स कौन निकालता है? क्वेश्चन आ सकता है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स कौन निकाल सकता है? नहीं पता? लिख लो, नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स क्या है? ये असेस करता है डेटा प्रिपेयर्डनेस ऑफ द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस ऑफ मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स। समझ में आया था? क्वेश्चन आर के बारे में पता है? लिख लिया ना वो डेटा क्वालिटी गवर्नेंस इंडेक्स? बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा है, फैक्ट्स है इसमें, कुछ समझोगे तो वो नहीं हो तो रीडिंग तो आपको लगानी ही पड़ेगी। क्वेश्चन आर, क्वेश्चन आर के बारे में सुना है? वेरी गुड। तो क्वेश्चन आर इज मेंशन्ड in the constitution, true or false? False. Question R is a statutory, question R has statutory backing, true or false? False. Very good. Question R is mentioned in the rules of procedure of Lok Sabha? True. True. Very good. अब question R जो है it has been suspended due to COVID. At the same time, the private members business was also suspended in the previous monsoon session. इस बार था, पिछली बार नहीं। ठीक है, समझ में आया? उसमें आपने रिवाइज तो कर ही लिया होगा कि क्या होता है क्वेश्चन आर, सबने रिवाइज किया हुआ है। क्या होता है, कौन सा आर होता है? First hour 11 to 12. वेरी गुड, 11 to 12 इट इज द फर्स्ट आवर। वेरी गुड। इसमें गलत मेंशन है, ये जो दिखाया हुआ है इसमें गलत बनाया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट आवर क्वेश्चन आवर होता है, सेकंड आवर 12 से लंच तक होता है। ठीक है, इसमें गलत बनाया हुआ है तो आप भी करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, स्टार्ट एंड स्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, इनके बारे में आप लोग जानते ही हैं, क्या बताने की जरूरत है? कोई भी किसी को नहीं पता हो तो बता दीजिए, रिवाइज करा देंगे। देखो न्यूज से पढ़ोगे तो कैसे क्वेश्चन गलत करा देंगे, कहीं न्यूज में आया होगा, वहां से कंटेंट टीम ने लिया है। ठीक है, हाँ जी। 0 आवर पता है कब शुरू होता है? क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद। ठीक है, 0 आवर 12 बजे नहीं शुरू होता, बहुत अच्छी समझिए, क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद। क्वेश्चन अगर 5 मिनट खत्म हो गया कि आज का क्वेश्चन नहीं, आप आज का क्वेश्चन नहीं, चल करो, तो 0 आवर शुरू हो गया। ठीक है, वेरी गुड। 0 आवर कहाँ मेंशन है? इनफॉर्मल डिवाइस। वेरी गुड, इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर, इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर। ठीक है, वेरी गुड, इट इज नॉट मेंशन एनीवेयर। इंडियन इनोवेशन भी है, इट इज एन इंडियन इनोवेशन। ये भी मेंशन करिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन इनोवेशन। ये क्वेश्चन है यूपीएससी में, पता है आप लोगों को? पास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन आर पे भी क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन उस पर भी है, 0 आर पर भी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन, एनी काइंड ऑफ बुढ़ापा पेंशन? वेरी गुड। अच्छा, कंज्यूमर वर्ड सुना है? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को फाइनली लेके कंज्यूम कर रहा है। वेरी गुड, ये बात बहुत अच्छी समझिएगा। कंज्यूमर मतलब है जो कंजम्पशन के लिए ले रहा है। ठीक है, आपने अगर कुछ सामान खरीदा उसको आगे जाके बेच दिया, यू वोंट बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर। और ये हमें कैसे पता लगा? तो एक नया एक्ट आया, दैट इज कॉल्ड एज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, नया एक्ट आया है। अच्छा, इस स्टेटमेंट का आंसर दीजिए,
The Consumer Protection Act is the replace or is the amendment in the Consumer Protection Act 1986. Or there has been a recent amendment in the Consumer Protection Act 1986. False. False. क्योंकि बहुत अच्छे समझिए, एकदम नया, एकदम मार्केट में लेटेस्ट चमकता हुआ नया एक्ट है, ठीक है, एकदम नया पीस है, ये मत सोचिएगा अमेंडमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है, डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर दी गई है, क्योंकि पहले वाले में ई कॉमर्स वाले यूजर्स थे, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज कंज्यूमर्स। 1986 में थोड़ी था आप अमेज़न से ऑर्डर करते थे, तब तो इंटरनेट कुछ ही लोगों के पास था, और ईमेल तो था हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास, लेकिन बाकी सब चीजें कुछ ही लोगों के पास थी, है ना। तो ये डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर इंक्लूड्स द ऑनलाइन कंज्यूमर्स आल्सो। राइट्स क्या है, ये राइट प्रोवाइड कर रहे हैं 6 राइट्स, ठीक है, ये राइट प्रोवाइड कर रहे हैं 6 राइट्स जो दैट वर देयर इन दी 1986 एक्ट आल्सो। एट द सेम टाइम दे आर प्रोवाइडिंग एडिशनल राइट्स, मतलब राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर इंक्रीज्ड। पहले क्या थे, राइट टू सेफ्टी, राइट टू, बेटा क्वेश्चन आ चुका है कंज्यूमर पे यूपीएससी में, ध्यान रखिएगा, पास्ट ईयर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये सारे राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, है ना, ये सारे राइट्स हैं। इसमें एडिशनल राइट क्या है, राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट टू हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट टू फाइल अ कंप्लेंट फ्रॉम एनीवेयर। अब ये नहीं कि तो आपको जहां से आपने सामान लिया वहीं कंप्लेंट करेंगे, यू कैन फाइल अ कंप्लेंट एनीवेयर, एंड राइट टू सीक कंपनसेशन अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी, ठीक है, अंडर प्रोडक्ट लायबिलिटी, मतलब अगर 7 दिनों आपकी त्वचा गोरी नहीं हुई तो प्रोडक्ट लायबिलिटी, आप अगर उसमें लिखा हुआ है कि दिस इज जस्ट ओनली फॉर मार्केटिंग पर्पसेस, तो आप नहीं कर सकते क्लेम। अगर उन्होंने लिखा है कि नहीं, इससे तो 7 दिन में त्वचा 7 शेड गोरी हो जाएगी, तो विल बी कहेगी पैसे दो हमारे, है ना। So these are the 3 rights. So right to have information on different aspects of goods and services, right to file a complaint, and right to seek compensation under product liability. ठीक है। At the same time एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको बोले सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, पिछले एक्ट में नहीं थी, दिस इज लेटेस्ट, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, दैट इज क्रिएटेड एज अ सेंट्रल लेवल और नेशनल लेवल। इनका काम क्या है, प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। At the same time, it will have an investigation wing that will be headed by a director general level officer. समझ गए। अब नए एक्ट में क्या है, पेनल्टीज फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट भी है, किस पे लगेगी, मैन्युफैक्चरर पे भी और एंडोर्सर पे भी, एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years ऑल्सो। दोबारा करते हो तो 50 लाख और 5 साल का इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। सो देयर कैन बी पेनल्टीज नॉट ओनली फॉर wrong information but at the same time for misleading information, ठीक है। तो मान लिया आपने विमल खाया, आपकी जुबान केसरी नहीं हुई, तो आप जो है कहोगे कि भैया ये तो मिसलीडिंग है, हमारी तो जुबान केसरी हुई नहीं, है ना, समझ में आया, वेरी गुड। और मैकेनिज्म क्या है, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन बनेंगे डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल पे, पहले भी थे, नाम चेंज कर दिया, कोर्ट्स को अब कंज्यूमर डिस्प्यूट रेजल्यूशन कमीशन बोल दिया। पहले क्या होता था, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल होता था, डिस्ट्रिक्ट फोरम होता था, अब ये कमीशन है। इनका क्या काम है, टू अनफेयर रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकना, डिफेक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज को रोकना, ओवर चार्जिंग रोकना, एंड ऑफरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल व्हिच मे बी हजार्डस टू लाइफ एंड सेफ्टी, ठीक है, ये सब चीजों का काम है। यूरिसडिक्शन क्या है, इट इज नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ज्योग्राफी, इट इज रिस्पेक्ट टू द अमाउंट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आप जा सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में जा सकते हैं इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, ठीक है, इफ इट इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर इफ इट इज फ्रॉम 1 करोड़ तो 10 करोड़, तो आप स्टेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमीशन पे जा सकते हैं, ठीक है, यानी कि 0 to 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट, 0 to 1 करोड़ डिस्ट्रिक्ट,
0 और 1 to 10 करोड़ स्टेट एंड 10 के अबव डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, ये क्या चेंज हुआ है? पहले था 0 to 20, 20 to 1 एंड मोर देन 1। ठीक है, पहले था 0 to 20 लाख, 20 to 1 करोड़ एंड नाउ इट इज 1, 10 एंड अबव। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, प्रोडक्ट लायबिलिटी का मतलब भी डिफाइन किया गया, एनी लायबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस प्रोवाइडर और सेलर, ठीक है, ऑफ अ सेलर विच may harm or cause injury for any defective or deficient service, any defective good or deficient service. ठीक है, to claim compensation consumer has to prove that the conditions for defect and deficiency as provided in the bill, कि ये defect deficiency थी इसीलिए हमें जो है ये वाला प्रोडक्ट के अंडर लायबिलिटी हमें चाहिए। ठीक है, there is a provision for alternate dispute resolution. alternate dispute resolution क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो शुरुआत में पढ़ाया था, आर्बिट्रेशन, रिकंसिलिएशन और कंसिलिएशन और मीडिएशन, दीज आर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, एडीआर। ठीक है, दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। यहां तक समझ में आ गया? यस, नो? अब क्या है, सेंटर ने क्या किया है, स्टेट की जो है, एक बार किया कम, एक बार ना कंज्यूमर ये वाला एक बार रीडिंग लगा लीजिए आप लोग, इससे ना आपको याद रह जाएगा सब। ये 2 पेजेस पढ़ लीजिए। डन, वेरी गुड। अब बोरोइंग क्या है कि जो लिमिट थी सेंटर की ने, जो लिमिट थी स्टेट की बोरोइंग्स पे, द स्टेट कैन बोरो अर्लियर अप टू ओनली 3% ऑफ द स्टेट जीडीपी, नाउ दे कैन बोरो अप टू 5% ऑफ द स्टेट जीडीपी। ठीक है, बस इसमें क्या समझना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से ही बोरो कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट विद इन द कंट्री बोरो कर सकती है। ठीक है, कितनी लिमिट, दैट विल बी फिक्स्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स दे सकती है स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंटर नहीं ले सकती। ठीक है, एक और नई चीज बताते हैं, स्टेट गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैन टेक लोन फ्रॉम आउटसाइड आल्सो फॉर अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बेसिस पे दे कैन टेक लोन्स और एनी
borrowing from outside India also. This was changed in 2017. ठीक है? Okay. ई लोक अदालत क्या है? ऑनलाइन लोक अदालत, खत्म कहानी। लोक अदालत कौन से एक्ट के अंदर है? नालसा एक्ट के अंदर, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। इट इज कोर्ट बचने के लिए लोक अदालत होती है। ठीक है, लोक अदालत कोर्ट नहीं होती, कोर्ट ना जाने से बचने के लिए होती है। ठीक है, इसमें कौन ऑफिसर होते हैं? एज जुडिशियल ऑफिसर, एज द चेयरमैन, अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर। ठीक है, लोक अदालत में सोशल वर्कर भी होता है। इनका क्या काम है? कोर्ट जाने से बचने के लिए जो है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म प्रोवाइड कराना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ई लोक अदालत 15 स्टेट्स में है। सबसे पहला स्टेट छत्तीसगढ़ टू हैव ई लोक अदालत, ये भी याद कर लीजिएगा, दिस क्वेश्चन में कम। छत्तीसगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट टू हैव ई लोक अदालत। ओके, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एनएचआरसी सुओ मोटो ले सकता है ऑफ द माइग्रेंट कंडीशन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स, इसीलिए न्यूज में था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, established under the Protection of Human Rights Act 1993, creation of State Human Rights Commission and Human Rights Court for Protection of Human Rights, है ना। Protection of Human Rights Act क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू दी ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री। ये एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि जो members of the Human Rights Commission है, that person has to be a Chief Justice of a Supreme Court। ठीक है, मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस। ठीक है, and the other members are a judge of a Supreme Court or a judge of Supreme Court। यानी कि एनएचआरसी का चेयरमैन होने के लिए, एनएचआरसी चेयरमैन होने के लिए यू हैव टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस और अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। इसमें 3 मेंबर्स होंगे, मेंबर which will amongst which one of the members shall be women, amongst 3 one of the members shall be women। इसमें कौन कौन होते हैं? चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियल मेंबर होते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, एंड द चीफ कमिश्नर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। दीज आर एक्स ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के मेंबर्स भी होते हैं, चेयरपर्सन। ठीक है, वो इसमें मिसिंग है। इट प्रोवाइड्स दैट पर्सन हु हैज बीन चीफ जस्टिस और जज ऑफ हाई कोर्ट शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी कि जो नेशनल पे वैसा ही स्टेट लेवल पे भी है। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस जो पहले 5 इयर्स थी अब 3 इयर्स हो गई है, और टिल द एज ऑफ 70 इयर्स। पहले 5 ईयर करती थी, अब 3 और 70 हो गई है एनएचआरसी में, इट हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, इतना जानना है। दिल्ली के फंक्शंस विल बी ट्रीटेड बाय एनएचआरसी। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो और यूटी के फंक्शंस एसएचआरसी को दे सकता है। In Delhi, it will be dealt by NHRC, and अगर state चाहे तो give those functions to NHRC। तो sorry HSR। समझ में आया? मिशन कर्मयोगी के बारे में सुना है? मिशन कर्मयोगी, इनका सिंपल है, इनका पर्पस है दैट सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी करना। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को फ्यूचर रेडी करना। ठीक है, इट इज फॉर सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, इट इज फॉर सिविल सर्वेंट्स। क्या क्या पर्पस है? ऑन साइट लर्निंग, ऑफ साइट लर्निंग होगी, शेयर ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स एक्टिविटीज एंड कॉम्पिटेंसीज होगी, एंड दे विल प्रोवाइड द कंटिन्यूअस बिल्डिंग एंड बिहेवियरल फंक्शन एंड डोमिनेंट कॉम्पिटेंसीज। इन सब चीजों पे फोकस करें। ठीक है, मतलब बेसिकली इट इज टू प्रोवाइड द बेटर ट्रेनिंग टू द सिविल सर्वेंट्स। अब इसमें क्या क्या आर्किटेक्चर है? प्राइम मिनिस्टर ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगा, कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा। ठीक है, एंड एक प्लेटफॉर्म होगा आई गॉट कर्म योगी। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म होगा आई गॉट कर्म योगी। ठीक है, विच विल बी established through a special purpose vehicle, which will establish through a special purpose vehicle। ठीक है,
IGOT क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेन, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेन, ठीक है। तो एक कौन रन करेगा? IGOT कर्मयोगी, एक स्पेशल सर्विस व्हीकल विच विल बी सेट अप एज अ कंपनी बट नॉट फॉर प्रॉफिट। इनका क्या काम है? सारे काम ऑनलाइन प्रोवाइड कराना, ये सब काम जो भी कर्मयोगी का मिशन है। ओके, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो आधार वर्डिक्ट था उसकी प्ली को रिजेक्ट कर दिया है। बस उन्होंने बोला कि इसको चेंज करना, उन्होंने बोला नहीं चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं चेंज करने का मना किया? क्योंकि आधार में उन्होंने जजमेंट दिया था कि आधार मैंडेटरी है पैन के लिए, आधार मैंडेटरी है बैंक अकाउंट के लिए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन जो है, पीरियड ऑफ स्टोरेज ऑथेंटिकेशन 5 years to 6 months कर दिया है, ठीक है। पहले 5 years तक डेटा स्टोर रहता था, अब 6 months है। क्वेश्चन आ चुका है 20 में, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड मोबाइल कनेक्शन। सो पैन के लिए मैंडेटरी है, बैंक अकाउंट और मोबाइल कनेक्शन के नहीं है। नो कंपनी और प्राइवेट एंटिटी कैन सीक आधार आइडेंटिफिकेशन। Struck down the provision of sharing of data on the ground of national security. Aadhaar card is must for availing facilities for welfare. ठीक है। Allow sharing of data on the ground of national security and no company or private entity can seek Aadhaar identification. ये जो है, लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन आया था उसमें उन्होंने हाँ बोला था, that they can with the permission, ठीक है। तो जजमेंट के बाद गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है where they have given the permission on the permission basis पावर टू दी प्राइवेट एंटिटीज, ठीक है। आधार क्या है आप सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? 12 नंबर का, 12 डिजिट का एक नंबर होता है, ठीक है। इस पे क्या क्या चीज होती है? 4 चीजें होती है बस, नेम, एज, जेंडर एंड एड्रेस, अलॉन्ग विद बायोमेट्रिक डेटा। बायोमेट्रिक डेटा में क्या क्या होता है? फिंगरप्रिंट स्कैन और आइरिस स्कैन, ठीक है। फिंगरप्रिंट स्कैन एंड रेटिना स्कैन, सॉरी रेटिना स्कैन, ठीक है। रेटिना, आइरिस ऑप्था वाले बताएंगे, लेकिन आंखों का होता है, ठीक है, आंखों का स्कैन होता है। क्यों यूज होता है सबको पता है आधार, है ना? क्या है ये तो बता ही दिया है हमने। आधार एक्ट क्या था? एक एक्ट आया था 2016 में, इट वाज पास्ड एज अ मनी बिल, बस ध्यान रखिएगा, दिस एक्ट वाज पास्ड एज अ मनी बिल, ठीक है। आधार वाले को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इतना ही है पॉलिटी के करंट अफेयर्स जो अभी हमें लगता है इंपॉर्टेंट। 2-3 चीजें हैं, ठीक है, 2-3 चीजें हम जो मिसलेनियस के थ्रू करा देंगे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो रिलेशन में चेंज आया है वो हम करा देंगे। पुदुचेरी में इमरजेंसी वो लगा था, प्रेसिडेंट्स रूल लगा था, वो हम करा देंगे अलग से। ये जो चीजें वो अलग से मिसलेनियस में करा देंगे, ठीक है। और कोई टेंशन? पॉलिटी क्वेश्चंस कर लेंगे अब, यस नो? वेरी गुड। कल से स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट, आज से एनवायरनमेंट रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, ओके। एनी डाउट यू हैव? नो डाउट। आज की थोड़ी हैवी हो गई क्लास, बहुत ज्यादा डेटा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा डेटा इंटरप्रिटेशन हो गई, ओके। चलिए, विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।